Good afternoon, ma'am. Okay. Can you see the syllabus PDF? Yes, ma'am. So this is what the suggested experiments. There are in all 14 experiments they have said. Oh, sorry, 15. But microwind is not possible to work on free version what we require. So what I have planned, just in first 10 experiments we will do 7 experiment and one as per the statement it should be with case study as I told you in the morning as well, right? This is what our list of experiment which I have planned for your batch. Take a screenshot of it. Everyone have taken the screenshot? Ma'am, all of this gonna happen. All of the experiments are will be held for us, or some of these, like 10 or 30. All. Just read out this PDF. Oh, sorry, I haven't shared. Sorry, I haven't shared PDF, PPT. Wait. Out of this, I will give you. Sorry. It's my fault. Fine, ma'am. Wait, let me share the PPT. What file I think it is. Yeah. Can you able to see now? Yes, ma'am. So please take a screenshot of this. This is what all 8 experiments you have to do under this AMVDL subject, where 8th one is case study. As per the plan, I think it is after 4th or 5th experiment, I will give the brief idea what you have to do in this. So right now, just keep in mind, you have to do case study. Case study means what you are going to learn and what is in your syllabus. Based on that, what is the latest advances or are the application which is not involved in the syllabus that you have to do. It how many 60 are there, no? So in a batch, if it is there, I will consider. So 60, 20, 20. How many? 15 are in batch, no? 15 in batch, each batch. So maybe 3 or 4 in a group. So it will be the group work. With upcoming time, I will provide you its information. So for today, as of you can see the experiment number 1, which is to plot and verify ID, that is drain current, and GM versus VGS for NMOS. Can you all able to read that? Yes, ma'am. Uh, ID is what? Drain current. GM is GM is transconductance. Transconductor means it is what is your current is V upon R, na? Yes, ma'am. The transconductance is I upon V. That is the reciprocal of your resistance. What it is in detail, we will see in the theory. But right now, you can see it, you can consider it as a V upon I. Is that clear? Yes, ma'am. Or much in detail, what I should say? It is ID upon VGS, keeping VDS constant. ID upon VGS. That is, it is a change in drain current after changing the input voltage, keeping the VDS constant. Is that clear to everyone?
Is that clear? Yes, ma'am. Okay. So this GM is useful in saturation region. मतलब ये अगर ज्यादा रहेगा तो हमारा गेन भी ज्यादा रहेगा, but that to be enough when your MOSFET is in saturation. We will see this much in detail in just next lecture, maybe Wednesday. So right now what you have to, this is you have to work with LT Spice. LT Spice software. You have used P-Spice, I think, in DLIC as well as in EDC. Am I right? Yes, ma'am. So LT Spice is a freeware. You have to just once you have to download in your laptop, and then whenever you require you can go through. So I have downloaded here LT Spice. So once you download, you will able to find such kind of screen. Ma'am, Okay, I have to share. I have to share. to see the screen. Sorry. I have to share my window. Sorry. Entire screen. Can you all able to see now? Some gray kind and some setting symbol kind of work is there. Can you all able to see now? Yes, ma'am. Yes, It is ma'am. from LT Spice 17th version X7. Am I right? Roman 7. So what you have to do, you have to write your program here. कैसे लिखना है क्या लिखना है, I will tell you. अगर if you want to find the graph, that is what you can say, plot of your ID versus what it is saying. क्या था ग्राफ में? हाँ, ID versus VGS or VDS, whatever it is. ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है ना एक्सपेरिमेंट में. इन शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक वी कैरेक्टरिस्टिक निकालना है हमको, राइट? What is your first experiment? Can you please read out its title, what I have given you? NMOS analog parameters in classroom. Yes. क्लासरूम में अभी मैंने लिस्ट नहीं दी क्या? I think I have shared some word. What it is? To plot Hmm? ID and GM To plot and versus- verify ID and GM versus VGS for NMOS. In Yes. short, we can say it is the VI and GMV characteristic, right? VI correct. पहले ID के साथ खेलेंगे, ठीक है? So what we have to do? We have to do VI characteristic for NMOS, है ना? NMOS V मतलब VGS because that is your input and ID is your output current. So once you install the software, you will have this screen. But directly you can't do any work here directly. So what you have to do, what program you have to write. स्पाइस का प्रोग्राम सबको आता होगा ना लिखना, इनफैक्ट आना ही चाहिए. आया कुछ याद में भी देख के? Can you Yes, all ma'am. able to see notes down? किया था पहले. है ना? MOSFET को कैसे, how to what we can say, syntax for how to write the MOSFET and how to initialize the voltage. It is connected between, for voltage VGS, it is connected between node 2 and 0, which is having a value 1 volt. Here VDS, which is again connected between 1 and 0, which having again value 1 volt. Similarly for M, it is a, sorry, gate, drain, source, substrate. And what is the name for your model and its parameter, length and width. I have taken it randomly. It's just a, we need to find your basic NMOS कैसे पे करेंगे, so that you can work with further circuits. Then dot model, every time whenever you are using any device, active device, you need to model it. Model means उसके क्या parameter है, you have to initialize. Otherwise, it will take it as by default. So in this case, I have taken length for that NMOS is 2 micro, width of that NMOS is 50 micro, VTO is 0.7. I can even change it to 1. I can go for 0.3. KP is what? It is mobility constant. क्या होता है K?
म्यू एन सी ऑक्स बाय डब्ल्यू क्या होता है ये सब आपको है ना, था पहले. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग यू. इट्स नॉट लाइक आई एम रैंडमली आस्किंग यू. KP and mu and Cox mobility into oxide capacitance. Okay, KP, yeah, KP, that is what mu and Cox. In numerical, KP dash is mu and Cox. Otherwise, it is mu and Cox W by. Don't worry, we will see that in detail. ये parameter I have just taken it. ये मैंने कहाँ से लिए? You have in Razavi in a first chapter, you will able to find the net list parameter by default parameter for level 1 simulator. Is that clear? वहां से ले लेना ये value if you want. You can vary it according to that. Then gamma value. तभी gamma निकाला था हमने ना under root twice q na epsilon SI upon Cox. That is its combined value is 0.5. उसमें हमको 5 अगर threshold voltage में 5 change करना है so 0.7. Then dot DC is because we are going to see the DC characteristic. VI DI DC characteristics है ना, आपने वैसे निकाला होगा ना जब कभी किया है. VI कैरेक्टरिस्टिक को कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बोला? AC, DC, ट्रांजिएंट. DC मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं निकाला है कभी? बायस पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट. This is very first time you are looking to the DC operating point. AC analysis, DC analysis. Have you heard this word ever before? एजाज, यस मैम, सुना है. कहाँ सुना है? EDC 2 में था शायद. हाँ मुझे याद है, आप सबने मेरी लैब में आके किया था. हाँ. मैंने आज जस्ट 3 के ऊपर नहीं बैठेगा या 2 के ऊपर नहीं बैठेगा. आई डू रिमेम्बर. यस मैम. एट दैट टाइम यू डिड डीसी एनालिसिस किया था. उसमें अपने एक सर ने शायद 3 एक्सपेरिमेंट लिए थे जिसमें 2 में डीसी था और 1 में एसी एनालिसिस था. सो फॉर दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज डीसी. क्योंकि डीसी व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू चेक द बायस पॉइंट. ऑपरेटिंग पॉइंट पे ही काम कर रहे हैं ना, वी आर कैरेक्टरिस्टिक ले रहे. तो से यस और नो सो आई कैन मूव अहेड. यस मैम. ओके, अब एजाज ही जवाब देगा, है ना? Okay, anyways, so whatever the programming I need to write based on my circuit. First you need to initialize the components, then you need to initialize the supply voltages, then you have to provide the parameters using dot model. Then what kind of analysis you are going to do? Here the DC analysis. Sorry, here dot plot. Then if you want to plot or whatever you are writing in a DC, कौन से वोल्टेज के वर्सेस में हमको चाहिए? आई हैव रिटन हियर विद VDS. देखेंगे VGS के साथ भी करेंगे, डोंट वरी. So for VDS, because I want output VI output characteristics for NMOS. मुझे क्या कैरेक्टरिस्टिक ही चेक करना है ना NMOS का एनालॉग पैरामीटर से. तो एनालॉग में ID भी लगेगा, GM भी लगेगा. So this is just for ID. So when I am writing a dot plot, मतलब उसके बाद जो कुछ दूंगे that is for the y axis. X axis पहले ही मैंने dot DC में दे दिया है. Is that clear to everyone? Any question in syntaxing of this NMOS? Ma'am, can you explain once again that DC X? Okay, DC is this is DC analysis where we are trying to find the we are working on the operating point. And here I have mentioned with dot DC with VDS. VDS your output voltage, am I right, in case of MOSFET? Yes, ma'am. So here I am trying to check out the output characteristic. And what I need to plot is ID of M1. क्योंकि मेरे पास M1 ही है ना. That is what my MOSFET model name I have given. और मैं M2 लिख सकती हूँ. Normal M नहीं लिखेंगे. MG लिखो, MN लिखो. But along with capital M, something should be there.
The same. So what the line dot plot space id inside the bracket m1, it is saying मुझे ड्रेन करंट का ग्राफ चाहिए VDS के साथ, बट वो किसका ड्रेन करंट है? MOSFET M1 का. अगर यहाँ दो MOSFET होते एट दैट टाइम इट इज क्वाइट बेनिफिशियल. अभी यहाँ M1 नाम दिया है, आईडी लिखोगे तो वो फिर पूछेगा कि किसका, तो हम डायरेक्टली M1 लिखेंगे. अगर M2 होता देन अगेन वी नीड टू से प्लॉट ID M1 स्पेस ID M2. अगर दो MOSFET होते तो देन ईच टाइम यू नीड टू गो फॉर y एक्सिस. अगर ये नहीं भी लिखा डॉट प्लॉट और उसकी जगह डॉट प्रोब लिखोगे, इट इज बेटर ऑलवेज. व्हाई? डॉट प्रोब लिखते ही वो ग्राफिकल एनालाइजर यानी ग्राफिकल व्यू पूरा दे देगा. फिर आप आईडी ऑफ M1 निकालो या IG ऑफ M1 निकालो या IS ऑफ M1, इट डजंट मैटर. लेट मी टेल यू व्हाट इट इज. वंस यू हैव रिटन योर प्रोग्राम इन नोटपैड, पहली लाइन हमेशा छोड़ना है. कोई भी स्पाइस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो, कोई भी, उसके नेट लिस्ट में every time the first line is your comment line, and comment line will begin with asterisk. Are you able to see what I am writing here? Yes. Yes, ma'am. Okay, so I have set it. हो गया नोटपैड में सेव. नाउ गो फॉर योर LT Spice. Go in file, open. I kept it in a desktop. .txt file. Open it. Here it gets open. Now ये भाग रहा है ना आदमी, दिख रहा है भागते हुए? दैट इज व्हाट रन. रन करेक्ट होगा तो वो डायरेक्टली आएगा, कुछ गलत होगा तो नीचे तीसरी विंडो आएगी, दैट इज फॉर वार्निंग विंडो. तो क्या क्या करेक्शन है वो उसके हिसाब से वहां करना है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. डॉट प्रोब लिखा है इसलिए ये विंडो आई है ब्लैक वाली. अगर डॉट प्रोब नहीं लिखता, आई विल शो यू अगेन, डोंट वरी. अरे वाह, इसमें दे रहा है. हम जो हमारे अपने कॉलेज में जो आर्काइव पीस स्पाइस है ना, तो फ्रीवेयर कॉलेज में अपने जिसमें किया था उस वक्त, हाँ मैम. उसमें अगर डॉट प्रोब नहीं लिखते तो ये विंडो नहीं आती. LT Spice डायरेक्टली ऑनलाइन में काम कर रहा है इसलिए दे रहा है, नहीं तो अपने ऑर्किड में ये काम नहीं करता. इस व्हाट माय पॉइंट इज, डॉट प्रोब नहीं लिखो तो ये डायरेक्टली ऐसा ब्लैक वेवफॉर्म एनालाइजर नहीं देता है. पर इसमें ही करेंगे हम हर बार LT Spice. इट इज ऑलवेज इजी टू वर्क एनीवेयर. ओके, वंस यू रन द प्रोग्राम यू विल हैव दिस. सो यहाँ जो हमने VDS दिया है दैट इज फ्रॉम 0 to 1 volt with the stepping of 0.1. So यहाँ वो उसके हिसाब से आ गया. Is that clear to everyone? Now at the upside this is waveform. Pick visible stress. इसके साथ चाहिए था हमको ID1 के साथ, है ना, IDM1. I will just click that and okay. VGS कितना है? यहाँ VGS कितना दिया है? What, how much One. voltage? 1 1 volt. हाँ. VT कितना है? 0.7, right? 1 minus 0.7 कितना होता है? 0.3. हाँ 0.3. हाँ, तो 0.3 पे आप देखो दैट इज कॉल्ड ओवरड्राइव वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज. वहां से ये ID करंट स्टेबल होगा. इज दैट क्लियर? Yes. Why? I am telling you again. Again, in fact, this is first time, sorry. After overdrive voltage, when your VDS is greater or equal to the overdrive voltage, your current is constant. Because at that time, your transistor, MOSFET transistor enter into saturation region. Is that clear? Saturation में जाने के लिए VDS ये greater और sorry
For saturation region, VDS should be greater or equal to VGS minus VTH. यही बोला था ना मैंने, यही कहा था क्या इसके पहले भी? For your MOSFET to be in saturation, your VDS current, that is a drain to source voltage, Should be greater than threshold voltage. थ्रेशोल्ड नहीं, VGS माइनस थ्रेशोल्ड से जब बड़ा रहेगा तब MOSFET ऑन होगा। पर हमको कैसे पता चलेगा कि ये MOSFEट ऑन होने के बाद सैचुरेशन में है या लीनियर रीजन में? यहाँ MOSFEट की वर्ल्ड में लीनियर यूज नहीं करते, ट्रायोड रीजन वर्ड यूज करते, TRIODE, दैट इज नथिंग बट योर लीनियर रीजन। जब हमारा VGS, whenever your VGS is greater than threshold voltage, definitely your MOSFET is on. Agreed. But how you can decide कि एक बार ऑन होने के बाद your MOSFET is in saturation or in triode region? That is based on your VDS. Is that clear now? ये पॉइंट सबको समझा है? To Yes. check MOSFET to be in saturation or in linear regions, one it is on, it depends on VDS. Is that clear to everyone? Okay, ma'am. Others? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, one Hmm. question was there. Ma'am, VDS के अनुसार ही हम लोग कट ऑफ रीजन एंड नहीं, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज के हिसाब से हम वो ऑन है कि ऑफ ये बताएंगे। ओके मैम। थ्रेशोल्ड वोल्टेज whenever it is great, sorry, VGS, your gate to source voltage is always greater than threshold voltage, then only your MOSFET is on. Now clear? यस मैम। अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 बोला है तो 0.7 से आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0.7 आ चुका है तो कंडक्शन स्टेट में जाना चालू कर दिया। सो व्हेन योर गेट टू सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर और इक्वल टू 0.7, MOSFET इज ऑन हो गया। ऑन होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ऑन होते ही वो ट्रायोड रीजन में कि सैचुरेशन में? बीजेटी में वो पहले लीनियर में जाता है फिर ही सैचुरेशन में जाता है, पर MOSFET में वो VDS पे डिपेंड होता है बिकॉज दैट इज अगेन एक्सटर्नल वोल्टेज। इज दैट क्लियर? यस मैम। So for MOSFET to be in saturation, saturation में वो कब होगा? जब उसका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यानी आउटपुट साइड जो वोल्टेज होता है ना, ड्रेन टू सोर्स, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू overdrive voltage, and overdrive voltage is what? It is VGS, gate to source voltage minus threshold voltage, यानी difference of gate to source voltage and threshold voltage जो कुछ वैल्यू आएंगी उससे अगर VDS बड़ा है तो वो सैचुरेशन में, नहीं तो वो ट्रायोड रीजन में, लीनियर रीजन में। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ MOSFET कौन से रीजन में? VGS हमारा 1 वोल्ट है और VT हमारा 0.7 है और VDS 1 वोल्ट है, तो MOSFET यहाँ कौन से रीजन में काम कर रहा है? ऑन तो वो है क्योंकि उसको VGS 1 वोल्ट है विच इज ग्रेटर देन 0.7, बराबर? इज दैट एग्री? इज दिस अ पॉइंट अग्रीड बाय एवरीवन? यस मैम। ये मैंने रैंडम वैल्यू ली है जो मुझे लगी, राइट, जिसमें इन विच आई हैव अप्लाइड VGS as 1 volt, VDS as 1 volt, and in modeling parameter I have given V2 as 0.7 volt. दिख रहा है सबको? यस मैम। बाकी सबको नहीं, सिर्फ दास को ही दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. We can. और गर्ल सही नहीं लगता आज क्लास में? Yes, ma'am. It is working in linear region. Can you explain this? Yes, ma'am. Because difference between VDS and VT is 0.3, which is less than VT. I think I should repeat again. Okay, fine. So for this circuit, VGS is 1 volt I gave, VDS as 1 volt, and VT as 0.7. I'm again repeating. For NMOS transistor to go into saturation region, your drain to source VDS should be greater
और इक्वल टू overdrive voltage. और overdrive मतलब क्या? That is what VGS, gate to source voltage minus threshold voltage. Now tell me in which region your MOSFET is working now. Saturation region. The girl, I think that was Siddhi, is it? Neha, ma'am. Neha. Okay, Neha. And now tell me in which region it is? In which region your MOSFET is now? Ma'am, सबसे पहले क्या linear. करना, VDS कितना दिया देख लिया, 1 वोल्ट है. अब क्या करना Yes. है, VGS माइनस VT करो, कितना है? 1 माइनस 0.7. 0.3. हाँ तो 0.3 ये बड़ा है क्या VDS से छोटा है? VDS से लेस है ना. हाँ तो लेस है, तो फिर कौन से रीजन में हो गया ट्रांजिस्टर? लीनियर ना, अगर ग्रेटर होगा तो सैचुरेशन में होगा ना. And VDS should be greater or equal to Sorry, overdrive voltage. तो ये लिख लो, इतना हमारा मेमोरी काम नहीं कर रहा है. तो यहाँ आई होप नहीं, एवरीवन एटलीस्ट एक बुक बनाओ जिसमें ये कंडीशंस तो भी लिख लो. Okay. For transistor, NMOS transistor to be saturation, VDS should be greater or equal to VGS minus VTH. So from looking to the given parameter and values, the transistor is in saturation region. वो saturation में कब जाएगा? When it is greater than 0.3 volt. और saturation में region में MOSFET always give a constant drain current. ये तो EDC2 EDC1 जहाँ था वहां से ही हमको पता होना चाहिए. Am I clear? In saturation region, MOSFET gives a constant current. Is that clear to everyone? Yes. Yes. याद आ रहा है अभी कुछ? ठीक है. So after 0.3 volt, your current, that's why it is showing at a constant value. It is near about 130 micro. देखते हैं यहाँ लिख के कितना वैल्यू दिखा रहा है. Yes, it is 133 microampere. मैं एक रखती हूँ यहाँ पे. तो नीचे looking to the very down at the left hand side, it is showing for 0.347 volt, you are having a current 134.77 microampere. If you just drag it up to the last, it should show me the same volt current value. Is it visible to everyone at the downside left hand, bottom left hand side? Yes, ma'am. To everyone? Yes, ma'am. But if I will check below 0.3, right? It is showing that your transistor is in linear region, triad region. After 0.3 volt, it goes to the saturation. यही तो हमारा VI characteristic है NMOS का. Am I right? Am I right? Means is that clear to everyone? First experiment सबको समझा, next में समझाऊंगा. जी मैम समझो. If you have any doubt to anyone, please ask me right now. From next time, you have to do your own. Because एक circuit को तो interpret करके लिखना, and then directly you have to work. Just one must know which analysis to do. So any question to anyone? Any question to anyone? मैम Yes. अगर वो सैचुरेशन रीजन में नहीं रहेगा, मतलब कंडीशन नहीं होगा सेटिस्फाई, तो वो लीनियर रीजन में रहेगा क्या? हाँ दिख रहा है ना, ये क्या ग्राफ? लीनियर मतलब क्या? जैसे जैसे वोल्ट यानी अगर ग्राफ के लैंग्वेज में बात करो तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा. सो एज सून एज यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज तो करंट भी बढ़ रहा है ना. दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ पे? हाँ मैम. मेरे एरो ये दिख रहा होगा ना, एक प्लस सिंबल. दिख रहा है मैम. हाँ, पर जब वो सैचुरेशन में जाएगा तो उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज. ओके. और उसके पहले तो ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं हो रहा है ना. इज दैट क्लियर? ये क्यों दिखा रहा है लीनियर? सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन होता है इंटरनल, हमको दिखता है ऑफ, पर सिमुलेशन में वो दिखेगा और जनरली भी सर्किट में दिखता है. वो हमको है एक पार्ट आएगा सब थ्रेशोल्ड, लीकेज करंट वो आएगा सर. अरे आपको हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके एडीसी2 में भी होता है ना आपको लीकेज करंट, सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन. तभी तो एक्सपोनेंशियल डिवाइस वर्ड आया था तभी सुबह.
याद है क्या ये वर्ड्स? मैं पूछूंगी नहीं ये क्या है, पर डू यू रिमेम्बर दिस वर्ड? ऐसे सुने हैं कभी? लीकेज, करंट, सब थ्रेशोल्ड, ऐसा कभी सुना ही नहीं है क्या? सुना है मैम। सुना है मैम। अब जो सुना है ना उसको थोड़ा सा गूगल को सुना और उससे फिर वापस में सुनो वो क्या रिएक्शन देता है उस पे। हाँ, थोड़ा देख लेना। यहाँ तक सबको समझ गए? यस मैम। नाउ व्हाट इज द सेकंड? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट देयर? जीएम निकालना है ना इसी का। हम वीडीएस के साथ जीएम निकालेंगे। सो व्हाट आई विल डू, okay, ये आ गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द प्लॉट सेटिंग, एड प्लॉट प्लेन, अरे उसे दूसरा सब ग्राफ दिया, एक हो गया ड्रेन करें। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? इस वाले ग्राफ में जीएम। जीएम मतलब 1/id ना, 1/id है, नहीं जीएम मिल जाएगा ना मुझे? मिलेगा या नहीं? Yes, ma'am. क्यों मिलेगा? क्योंकि ट्रांस कंडक्टेंस का मैंने कहा इट इज I/V। तो बेटा आईडी हमने लिखा है तो 1/I। ओके, ड्रेन करंट का इक्वेशन क्या है? चलो, इसलिए शायद किसी को याद है। ड्रेन करंट का इक्वेशन क्या है जो आपने कभी पढ़ा होगा? ड्रेन करंट फॉर NMOS, ID is equals to half of mu n C of, ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? अरे बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, यस और नो? हाँ यस मैम, आपने सुबह भी दिखाया था। हाँ, चलो, किसी को तो याद है, और किसी को याद है? एक काम करती हूँ, आई विल गिव यू द यहाँ directly the every solution, but tomorrow in lecture I need your help to discuss about that point. So what I have done here, I have created the second subplot. What I will do here, मुझे GM निकालना है, so GM I will get with the derivative of 1/ID. So what I will do, सबको दिख रहा है? मैंने ट्रेस कहाँ से मांगी? यहाँ से। Here I will click it, then double click on, oh shit, sorry, सॉरी, मैं भी भूल गया आपके। ठीक है, डबल अल्टर डबल क्लिक, जहां चाहिए ना उसके ऊपर अल्टर डबल क्लिक। आईडी के साथ खेलना है ना मुझे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस अल्टर ऑन माय कीबोर्ड एंड डबल क्लिक ऑन आईडी। एवरीवन अंडरस्टूड हाउ आई गॉट दिस विंडो? अल्टर वाला टैब होता है ना कीबोर्ड पे, होता है या नहीं? ALT लिखा। यस यस मैम। हाँ, तो वो क्लिक करना है और बीच कौन सी वेवफॉर्म के साथ हमको खेलना है वो देखें। तो आई प्रेस अल्ट और डबल क्लिक ऑन this. So what I will do, 1 divided by डेरिवेटिव के लिए D, डेरिवेटिव क्यों लिया? बिकॉज VDS कांस्टेंट रख के हमने VGS के साथ ID को वेरी किया है ना, इसलिए। So what it is showing, as your drain current is constant, your GM, that is transconductance, is also constant. ट्रांसकंडक्टेंस कांस्टेंट है मतलब हमारा गेन भी कांस्टेंट मिलेगा हमको सैचुरेशन में for MOSFET and MOS. Is that clear now, everyone?
ये कैसे है पता चला सबको? अभी दिख रहा होगा, ठीक है? Everyone understood this first experiment? Yes, ma'am. So what we have done, we just took VDS at x-axis, and on the y-axis first we took drain current and then GM. GM is 1 upon ID. यहाँ डेरिवेटिव इसलिए लिया है क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा यहाँ पे, बिकॉज वी नीड टू वेरी VGS by keeping VDS constant. पर ग्राफ में तो VGS भी बोला है ना, इसमें सॉरी यहाँ पे VDS तो मैंने आपको करके बताया थी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ये दिख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे चेंजेस वर्ड फाइल पे? हाँ दिख रहा है मैम. हाँ, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैंने तो VDS बताया ना, और बेसिकली तो VGS के साथ करना है. तो मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे VGS के लिए प्रोग्राम में? स्क्रीनशॉट लिया अभी फ्रेश वाला? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, कहाँ मेरे 38 पैसा? अब मुझे VGS के साथ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ चेंज करना पड़ेगा ग्राफ में, या ये राइट है, करेक्ट है? ये एक पार्ट हो गया ना. दिस इज द जस्ट वन पार्ट ऑफ योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज ID एंड GM वर्सेस VDS. अगर VGS के साथ करना है तो मुझे क्या करना है? Ma'am, instead कुछ of चेंज VDS, करना है या नहीं प्रोग्राम में? yes, ma'am. VDS की जगह हम लोग को VT से कंपेयर करना पड़ेगा मैम. VT. हाँ ठीक है. अब मैं नहीं कंपेयर क्या, सिर्फ डायग्राम प्लॉट है ना, पैरामीटर नहीं रखो, कोई इश्यू नहीं. हमको ग्राफ VI कैरेक्टरिस्टिक के लिए V चेंज करना. एक बार आउटपुट ले, एक बार इनपुट लेंगे ना. Okay. ओके, क्या ऐसी होती ना VI इनपुट आउटपुट नहीं, मैं कैरेक्टरिस्टिक? सोचा कि कंपेयर करके करेंगे. हाँ, तो कंपेयर भी करेंगे. ये स्क्रीनशॉट ले लेना VDS के लिए. आप अभी ये वाला नहीं लेना है मुझे. I will tell you what it is. Just first now, if I have changed VDS to VGS and make it run, ग्राफ देखो चेंज हो गया. हो गया क्या चेंज? Can you all able to see the graph? Yes, ma'am. It's changed. अदर्स? सिर्फ दास की आंखें अच्छी है, बाकी किसी की नहीं है क्या? Yes, ma'am. पूरा चेंज हुआ, उल्टा हो गया, राइट? Yes. हाँ, वहाँ 0.3 के बेसिस पे वो इट गोज इंक्रीज एंड कांस्टेंट, राइट? बट यार 0.7 के साथ है. 0.7 तक GM हाई है और almost the drain current is 0. After 0.7 your drain current, because this is your input voltage. Input के साथ change कैसे होगा वो भी हमने देखा. Is that clear to everyone now? हमने आउटपुट करंट के साथ we have seen the ID variation with respect to output current, output voltage. We have also seen the drain current with respect to the input voltage. अब इसमें क्या चेंजेस हैं, क्यों चेंजेस है, ये आपके कंक्लूजन में आएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, ma'am. और सबका कंक्लूजन अलग होगा. मुझे किसी का भी सेम आएगा तो उसको मैं 0 दूंगी, कमेंट में लिख के दूंगी कि किसके जैसा था, और जस्ट कॉपी इट और मैं अपने फाइल में रखूंगी. और ये मैम, हाँ ये जो बोलो. एक्सपेरिमेंट्स है वो हाँ. वर्ड फाइल में आपको क्रिएट करके मैं बताऊंगी उस वहां था क्यों नहीं. आई हैव स्टिल 15 minutes. ओके But मैम. what I am expecting after simulation, right? आपका ये सिमुलेशन आप स्टार्ट करेंगे. ऊपर दिख रहा है लेफ्ट हैंड बॉटम, सॉरी टॉप लेफ्ट हैंड साइड, या Yes, ma'am. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिख रहा है कुछ ना? हाँ मैम. सभी को दिख रहे हैं? Yes. Yes. Yes, हाँ. ma'am. वहां मैंने एक्सपेरिमेंट 1 लिखा है. आपको वहां लिखते वक्त क्या लिखना है? AMVDL. मैं जो बता रही वही नॉमेनक्लेचर होगा तो ही चेक होगा, अदरवाइज अगेन इट इज 0.
ये थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा, मैडम ज्यादा रूल्स बता रही, पर मैं कोशिश करूंगी उसी दिन पे खत्म हो जाए, तो while at the last you won't have burden with this lab. तो नाम कैसे रहेगा? nomenclature to every file for everyone. AMVDL अंडरस्कोर, हाइफन नहीं, अंडरस्कोर एक्सपेरिमेंट EXPT 1 2 3 जो कुछ होगा। अभी इस केस में आप जैसे फॉर एग्जांपल विशाल लिख रहा है, तो व्हाट ही विल राइट विशाल P। अगर एक ही नाम है क्लास में विशाल तो कोई इशू नहीं, अगर कोई दो नाम हो उसके लिए सभी को करना है। विशाल एक है फिर भी वो यही लिखेगा AMVDL अंडरस्कोर EXPT 1 अंडरस्कोर, क्या रोल नंबर है विशाल का? विशाल 36। हाँ, तो AMVDL अंडरस्कोर EXPT 1 अंडरस्कोर 46, कितना? 36 मैम। सॉरी 36 अंडरस्कोर 36 अंडरस्कोर विशाल P। Why I'm asking you roll number and name both? कॉलेज का भरोसा नहीं, या आप में से कोई ड्रॉप कर दे, कोई बीच में छोड़ दे, तो फिर रोल नंबर आगे पीछे हो जाए। So for that security, I'm asking you AMVDL underscore EXPT 1 2 whatever the experiment underscore roll number underscore name. Vishal P, Rishabh G, Swamini A, according to that. Is that clear to everyone? Yes मैम। हाँ, तो यानी मुझे हर एक का स्क्रीनशॉट में उनका ऊपर नाम दिखेगा। सो एनी, अगर आप कॉपी भी कर रहे हो प्रोग्राम किसी से, तो भी यू हैव रन इट। इज दैट क्लियर? आप रन कर रहे हो मतलब थोड़ा तो कुछ समझ ही रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यानी हर एक के स्क्रीनशॉट में मुझे दिखना ही है। अगर मुझे वहां अगर अलग दिखता है तो वो कॉपी केस में वैसे भी 0 ही जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यूज, अपना मार्क्स है खुद लेके जाओ, मेरे पास कुछ रखने की जरूरत नहीं। जितना आप अच्छा, जितना ठीक से करेंगे, उतने मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? अबाउट एनी डाउट इन नोमेनक्लेचर ऑफ द फाइल? Yes, ma'am. It's clear. Okay. Now, the Vishal, what's your question is? फाइल्स कौन से फॉर्मेट में सेंड करना है आपको? हाँ, ऑफ कोर्स वर्ड फाइल में करना है, गूगल क्लासरूम में, जिसमें थियरी पार्ट हैंड रिटन होगा। लेट मी टेल यू व्हाट यू विल क्रिएट अ वन वर्ड फाइल जिसमें यही नॉमेनक्लेचर होगा जो आपने LT स्पाइस के लिए दिया था। यस मैम। AMVDL अंडरस्कोर EXPT 1 अंडरस्कोर 36 अंडरस्कोर विशाल P, यही नाम का आपका वर्ड फाइल या PDF। देखते हैं वो गूगल क्लासरूम मुझे क्या बोलता है। टाइम नहीं लगता है ना सेव एज करने के लिए। वो अलग कर देगा, उसका कुछ फिक्स नहीं है, आप जो चाहिए PDF कर दो ना, आप PDF कर दो। ओके मैंने ठीक है। सेकंड ईयर को तो PDF ही मांगा था। हाँ PDF मैम। कर दो बेटर, एंड नो वन कैन टेक एज इट इज योर्स। Better, all of you have to submit in a PDF form. Nomenclature I am clear. आप once you create the word file, उसमें aim आएगा, experiment number सबसे पहले आएगा, experiment number 1, aim of it, then the requirement, अब तो requirement हमारा software PC installed with SpacePice software, then the circuit diagram, then theory, then programs, SPICE program, then output, conclusion. Is that clear to everyone? Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Vishal, Ma'am, can you yes, ma'am. repeat the sequence? Yes ma'am. Yes, go ahead. So for the PDF, your name will be as told by our ma'am. क्या म्हणतोय विशाल? Title will be experiment number 1. And, below that AM, then requirements required, then circuit diagram, then about the practicals and the program, then output, and lastly conclusion. हाँ, conclusion. Again, theory hand written ही होनी चाहिए। अब NMOS की theory, VI characteristic और GM, इसकी information लिखना है वो अपने ही hand written में होगी। In short, आपको वो फोटो निकाल के स्कैन करके आपके वर्ड में सेव करो,
और फिर पीडीएफ बनाओ या वर्ड, वर्ड या पीडीएफ बोथ आर वेलकम इन माय गूगल क्लासरूम, बट इफ यू वांट द यूनिफॉर्मिटी यू अमंग डिसाइड योरसेल्फ कि पीडीएफ करना है या वर्ड. मॅम तुम्ही कन्क्लुजन साठी काय सांगितलं परत एकदा सांगा ना. Conclusion is what I have explained about the conclusion in this experiment. We did two experiment and two sub Yes, experiment. एक विथ वन VDS and VGS. हाँ, तो दोनों में क्या फर्क है? Anyone want to say something? Okay. So VGS पे I कैसा डिपेंड है, VDS पे I और GM दोनों कैसे डिपेंड है? ठीक है, समझ गए? ओके मैम. हाँ ओके. नहीं अभी और बताती हूँ, एक मिनट. हाँ, और ये जो प्रोग्राम है ना, दिख रहा है सबको प्रोग्राम? हाँ. हाँ, तो अब इसमें पैरामीटर्स चेंज करके देखना कि लेंथ अगर बढ़ा दूं तो क्या होगा, विड्थ छोटा कर दूं तो, यानी जो जितने पैरामीटर्स यहाँ दिख रहे हैं ना, एल, डब्ल्यू, वीटीओ, केपी, गैमा, फाई, दिख रहा है सबको? यस मैम. 2 लाइन में तो वो हो जाएगा वीजीएस और वीडीएस वाला विथ रेस्पेक्ट टू द सॉरी फॉर द ड्रेन करंट, वो तो 1 या 2 लाइन में. उसके बाद क्या फर्क पड़ता है वो भी लिखना है कि लेंथ बढ़ाओ, दिए हुए लेंथ 2 से ऊपर करो या 2 से नीचे, तो क्या फर्क पड़ता है ग्राफ में, व्हाट हैपन टू द जीएम, दैट इज आई 1/डेरिवेटिव ऑफ आईडी. यानी हर पैरामीटर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके ड्रेन करंट और ट्रांसकंडक्टर्स पे, वो भी लिखना है. सो कंक्लूजन मे गो फॉर मोर देन 6 to 7 लाइन, डेफिनेटली इट विल. इज दैट क्लियर? यस मैम. और अपने अपने पैरामीटर लिखने हैं. अगर अभी ये लिखोगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा, जैसे अब हम व्हाट वी हैव टेकन LS2 WS50, राइट? तो ये कुछ ग्राफ चेंज हो रहा है ना. फिर अगर इफ आई विल अगेन चेंज माय, एक सेकंड, इसका बड़ा लोचा है यार. ठीक है. नाउ इफ आई विल चेंज, फॉर एग्जांपल इफ आई विल डू दिस एज 10, बहुत छोटा कर, बहुत ज्यादा ही छोटा होगा ना, 50 करके देखते हैं. आई विल सेव इट एंड रन. कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा. पड़ा फर्क कुछ? No. अगर मैं विड्थ 100 कर दूं तो अच्छा, हम लोग वीजीएस में है ना, इनपुट में कैसे होगा, सॉरी. इसका इम्पैक्ट वीजीएस में भी पड़ता है, माइक्रोज में पड़ता है, डोंट वरी. पड़ रहा है कुछ फर्क? हम लोगों ने जब 120 लिया था और वी हैड डब्ल्यू एज 50 ना, इनिशियल केस, ये ऐसा कुछ था आप लोगों को, राइट? अगर मैं चेंज करके देखती हूँ तो क्या होता है, पहले मैं आई विल चेंज माई विड्थ. कोई फर्क पड़ता है क्या, वो लिखना है. देन केपी को मैं 50 करके देखती हूँ, दैट इज योर म्यू एंड सी ऑफ. कुछ आ रहा है ना फर्क? ये सब आपके उस कंक्लूजन में दिखना चाहिए, मतलब इतने ग्राफ्स नहीं दिखेंगे. क्या फर्क है वो शब्दों में आपको लिखना है. दिस हाउ योर दिस पैरामीटर्स, गामा पैरामीटर, फाई पैरामीटर, this transconductors parameter, that is kp, how this affects your graph. Is that clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Any question to anyone? That's all from my side for experiment number 1. Still we have 5 minutes. Any question to anyone? Ma'am, can you show us how to plot in LT Spice? ये LT spicy तो है, क्या कर रहे हो? नहीं, लाइक उसमें आपने Repeat, प्लॉट repeat. कैसे किया वो बताओ. Okay, you want repetition? यस. Okay. मैंने रन किया, ऐसा कुछ विंडो आया, बराबर है.
आपको चाहिए तो आप प्लॉट सेटिंग में जाके ऐड ट्रेस करो, या यहाँ पे अभी एक ही पैन है ना, ये एक ही पैन है, मैंने सब प्लॉट नहीं किया ना कुछ। नहीं। हाँ, तो ये ऊपर दिख रहा है कुछ पिक विजिबल स्ट्रेस हाँ, करके, क्लिक इट। अब मुझे वीडियोस के साथ आईडी ऑफ M1 चाहिए, तो आई विल क्लिक आईडी ऑफ M1, दिख रहा है, यस मैम। क्लिक इट, ओके, डन। अब मैं ओके। इसके साथ अगर 1/IDM करूंगी तो वो थोड़ा मुझे when I need to write conclusion, it creates me some messy work there. hodgepodge दिखेगा. So what I will do, I will go for plot setting, add plot pan. तो एक दूसरा सब प्लॉट बन गया. अगेन अब यहाँ मुझे रखना है, तो अब व्हाट आई हैव टू, अब वहां तो डायरेक्ट मुझे आईडी नहीं चाहिए, कुछ एक्सप्रेशन लिखना है, तो यहाँ लिखा है, आपको दिख रहा है अल्ट डबल क्लिक है ना एक्सप्रेशन के लिए, तो मुझे आईडी के साथ चाहिए, तो आईडी एम को मैं अल्ट और डबल क्लिक करूंगी, तो वो मुझे यहाँ पूछ रहा है क्या एक्सप्रेशन चाहिए भाई, तो मैं दे रही हूँ उसको 1/डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड ओके, तो उसने वो एक्सप्रेशन दे दिया उसके लिए, वो मुझे क्लिक इट एंड ओके, राइट। आया भी, अंडरस्टूड, विशाल था या कौन था वो, whosoever understood this point? Yes, ma'am. Any questions to anyone? That's all from my side. Any question to anyone? इसके बाद कोई भी लैब सेशन में मैं ऐसे ऐसे सवालों के जवाब नहीं दूंगी, हाँ वो रिलेटेड पर्टिकुलर उसी एक्सपेरिमेंट के होंगे, पर ऐसे नहीं पूछना कि मैडम ये प्लॉट कैसा करता, आई डोंट रिमेम्बर, अब ये कैसा था, ये नहीं, जो कुछ है ये दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट चांस. एनी क्वेश्चन टू एनीवन? ये एक्सपेरिमेंट 1 उसी के लिए रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई पूछता भी नहीं, दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. मैम वन मोर थिंग. यस मैम कंक्लूजन में अगर हम लोग कंपैरिजन एंड लिखे मैम ये दोनों का VDS एंड VGS का, तो मैम थियरी में बेसिकली क्या लिखेंगे, थियरी पार्ट? थ्योरी में बताना आपको कि ट्रांसकंडक्टेंस क्या है, वी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एनमॉस क्या है, और बेसिक दूसरे पे इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या केपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ है. ये कल का वेडनेसडे वाला ये होगा ना सेशन, यस सेशन, उस वक्त समझ में आएगा. आईडी का इक्वेशन क्या होता है, हाफ ऑफ म्यू एन सी ऑफ W/VGS माइनस VTH होल स्क्वायर. तो ठीक है मैम. तो वैसे आपको बताना पड़ेगा वो शब्दों में कि हाँ ओवरड्राइव के साथ आईडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, स्क्वायर है तो. यस. हाँ, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन ऑफ एनीवन? और शैल आई कंक्लूड फॉर टुडे? अब इसके लिए तो यस और नो बोलो. हाँ यस मैम. अदर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अभी जाना नहीं, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट एंड स्टॉप माय प्रेजेंट. लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट एंड डोंट, अनलेस आई से डोंट गो. दोनों सेफर साइड में रखना है मुझे, इसलिए मैं प्रिंट स्क्रीन ले रही हूँ, अदरवाइज उसने मुझे दे दिया है, और हम आप सेफर गेम खेलेंगे थोड़ा. और बीच में भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, वहां मुझे टाइमिंग दिखता है कौन कितने बजे छोड़ के गया था, और मैंने भी स्क्रीनशॉट बीच में अलग इसमें लिखे हैं. उसके लिए उसको मैंने हेडिंग दिया है झोल झाल, मतलब बीच में अगर बच्चा चला गया तो उसके अटेंडेंस में नहीं लगाऊंगी इसके लिए, नहीं तो वो आखिरी में ही लेती है मैडम, तो मैं आखिरी में ज्वाइन करूंगा, ऐसे नहीं करना. आप स्मार्ट हो तो आपकी मैडम थोड़ी तो आपसे ज्यादा होंगी ना. Done from my side. If you wish, you can leave. If you have any question, you can stay here. Thank you. Stay safe. Take care. Bye.